Hello student. Today we will study about matter in our surroundings. We will end this lesson in a single lecture, okay? And we will study it in such a way that all the problems related to this chapter are cleared. Let us start. Matter in our surrounding. At first, matter. In this chapter, we will read matter, its definition and characteristic, diffusion and its application, Brownian motion, state of matter, interconversion of these state of matter, evaporation, and important physical quantities and their SI unit. Okay? Anything that occupies space and has mass is called matter. It exists in the form of 5 basic elements. The Panchatantra: air, earth, fire, sky, and water. For example, chair, bed, river, mountain, tree, building, etc. And the characteristic of matter is made up of small particles called atoms. And these particles are too small to be observed with. We are not able to observe this in naked eyes. These particles are constantly moving, and these particles have space between them. Particles of matter attract each other because of the force of attraction. And main point is diffusion. What is diffusion? The particles of matter intermix on their own with each other, and they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Okay? Let us start step by step. Physical nature of matter. The matter is made up of particles, and everything around us is made up of teeny particles of particles. The particles of matter are constantly moving, and the particles which make up matter are atoms and molecules. जितने भी मेटर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं. एंड एवरीथिंग, जितना भी हम लोग के आसपास है, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वो सभी किसके बने हुए हैं? पार्टिकल्स के बने हुए हैं. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो हमेशा गतिमान रहते हैं, मूव करते रहते हैं. एंड द पार्टिकल्स व्हिच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. वह जो बने होते हैं किसके? एटम्स के बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. ठीक है कॉन्सेप्ट यहां तक. अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर आखिर कितने छोटे हैं? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी इन साइज. वो बहुत ही छोटे साइज में होते हैं. एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम. Particles of matter move constantly. ये जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. एंड दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर. और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं. अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है? हमको उसको देखना है. द मेन. So these are the 4 main characteristics of particles of matter. First, particles of matter are very teeny in size. Matter जिसके जो particles होते हैं वो बहुत ही teeny, बहुत ही छोटे होते हैं. And they have space between them. और उसके particles के बीच में क्या होते हैं? Space होते हैं. ठीक है. और particles of matter move constantly. और वो move करते रहते हैं. और
लास्ट पॉइंट है दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की। अब यहां देखिए स्टेट ऑफ मैटर, तो हम लोग देखते हैं कि मैटर्स आर फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं और गैस में होते हैं। तो इसका डिफरेंस हम अगर देखते हैं तो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बट इन केस ऑफ लिक्विड इट इज समव्हाट लूज। ये थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, लूजली अरेंज्ड रहता है, बट इन केस ऑफ गैस ऑल मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली अरेंज्ड। इसमें जितने भी इसके मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये अधिक कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। ओके, अब है मैटर। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर टर्म often considered synonyms with matter is substance, but a substance has a more limited definition in chemistry. Chemistry deals with the study of behavior of matter, and chemistry is concerned with the composition, structure, and properties of matter and the phenomenon which occur when different kinds of matter undergo changes. नहीं, तो इस तरह से हम लोग मैटर देखिए, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो मैटर जो पाए जाते हैं 3 स्टेट में, वो है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड है, लिक्विड और गैस को तीनों को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे इसमें, और इसमें आपको यही सेपरेटली ही स्टडी करना ही है। ओके, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड। अभी जो बतलाया आप लोगों को, हम लोग सॉलिड में जो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स आर टीनी एंड हेंस इट इज टफ टू कंप्रेस देम। तो कहता है कि इसके पार्टिकल्स में गैप में इतने कम होते हैं कि उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्ट रहते हैं। सॉलिड हैज ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मींस पोजीशन एंड कैन नॉट मूव। वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो वो बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंज्ड रहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज एडमनेंट। तो इसका जो फोर्स ऑफ पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एडमनेंट होता है, मतलब बहुत ही दृढ़ रहता है। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लो। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड आइस, सुगर, रॉक, वुड एक्सेट्रा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या आता है, बेंच है, टेबल है, सुगर है, आइस है, रॉक है, जो भी हम लोग देखते हैं हार्ड है, वो एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड का है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ये रहा आपका, मान लीजिए आइस क्यूब है, इसमें देखते हैं एकदम कॉम्पैक्ट है, ये कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, खाली जगह इसमें है ही नहीं जो इसको कंप्रेस हम कर सकें, दबा सकें और इसको हम लोग छोटा कर सकें। नेक्स्ट, लिक्विड। इन ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड की बनस्पत इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही लूज होते हैं, लेस टाइटली होते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिसमें हम लोग जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखते हैं वो उस आकार का हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। ओके, लिक्विड आर डिफिकल्ट और कंप्रेस एज पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव। तो लिक्विड को भी कंप्रेस करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है, क्योंकि तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस स्पेस में रहते हैं। लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। और रेट जो डिफ्यूजन का होता है वो क्या होता है, अधिक होता है सॉलिड के बनस्पत। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स
इन वाटर देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे अधिक किस में होता है? सॉलिड में होता है, और वाटर में थोड़ा कम होता है। और इसका एग्जांपल आपका हो गया वाटर, मिल्क, ब्लड और कॉफी। तो इसमें एक टर्म हम लोग देख रहे हैं, आ रहा है क्या? डिफ्यूजन। नहीं तो अभी हम लोग पढ़े उसको, टर्म को, डिफ्यूजन को हम लोग देख ही लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, लिक्विड है ये, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कि बहता है वो लिक्विड है, ठीक है। तो इसकी पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, लूजली अरेंज्ड हैं, फिर भी उतने लूज नहीं है, लेकिन फिर भी उतने भी कॉम्पैक्ट नहीं है जितना कि सॉलिड में होता है। ओके, अब आगे इसमें हम लोग देख रहे हैं गैस। इन गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत दूर होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज निग्लिजिबल। और इसके जो अट्रैक्शन पावर जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, एकदम नगण्य होता है। एंड दे कैन मूव फ्रीली, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। गैस का जो है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। द गैसियस स्टेट हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत अधिक है। द रेट इज डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड। और डिफ्यूजन का जो रेट है वो सॉलिड से और लिक्विड से क्या है? उसका अधिक है। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हायर देन इन सॉलिड एंड लिक्विड। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पावर जो इसमें है सबसे अधिक होता है गैस में। जैसे कि हम लोग देखते हैं हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन हुआ, ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना भी बोल सकिए गैस के बारे में, सभी गैस जो है इसी नेचर के होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ये है, आप देखिए गैसियस स्टेट है और स्ट्रक्चर ऑफ गैस दिया हुआ है यहां पर। इसके पार्टिकल्स देख रहे हैं ना कि एकदम लूजली अरेंज्ड हैं, नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ए सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस जो है, हाँ, वो तीन रूप में, तीन स्टेट में रह सकते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो निर्भर किस पे करता है? उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है और उसके प्रेशर पे निर्भर करता है। बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब्सटेंस कैन बी मेड टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर को बदलकर हम किसी भी चीज, कुछ जो आपके सॉलिड है उसको हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग गैस में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ए सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंज इनटू लिक्विड, व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू गैस। सिमिलरली ए गैस ऑन कूलिंग condense into a liquid which on further cooling change into solid। नहीं, इसमें क्या है कि अगर कोई भी ठोस, मान लिया जाए सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसको हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर गैस है उसको हम लोग कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को और कूलिंग करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, फेज चेंज ऑफ मैटर। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये सॉलिड है और ये क्या है? गैस है। इसका अगर हम लोग सब्लिमेशन करते हैं तो वो गैस में चेंज होगा, लेकिन डिस्पोजिशन में क्या होगा? वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर इसका मिल्टिंग होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर फ्रीजिंग होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा। अगर लिक्विड का हम लोग इवोपरेट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन गैस को हम लोग कंडेंसेशन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में फिर कन्वर्ट कर जाएगा। अब है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर। नहीं, सबसे आसान उदाहरण क्या है इसका? वाटर है। इट्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों स्टेट में हम लोग वाटर को इजीली अपने घर पे भी देख सकते हैं। नहीं, सॉलिड क्या हो गया? आइस हो गया। लिक्विड क्या हो गया? वाटर हो गया। और गैस क्या हो गया? वाटर वेपर हो गया। ओके, तो ice is a solid state and may be melted to form water, liquid, which on further heating change into steam gas. These changes can also be reversed on cooling। कहता है क्या कि अगर हम वाटर को
सॉलिड आइस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और फिर वो अगर लिक्विड फॉर्म में उसको फिर हीट करते हैं तो वो स्टीम भाप में बदल जाता है। नहीं, और दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन कूलिंग, और ये भी क्या होता है, ये रिवर्स हो सकता है। अगर ठंडा करेंगे तो वो रिवर्स करेंगे तो फिर वो किस में आ जाएगा, आइस पे चेंज कर जाएगा। अब देखिए यहां पर आइस है, तो आइस देख रहे हैं, आइस ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, वाटर में। हीटिंग, गर्म किए तो वाटर में, फिर गर्म किए तो स्टीम में, अगेन स्टीम को कूल किए तो वाटर में, वाटर कूल किए तो आइस में। आइस हो गया सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म, और स्टीम हो गया गैसियस फॉर्म। ओके, अब देखिए व्हाट इज इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? तो इवोपरेशन कैन जनरली बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए लिक्विड और सॉलिड इज ट्रांसफर्ड इनटू वेपर। क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि वाटर जब है, लिक्विड फॉर्म जो है वो जब ट्रांसफर होता है किसमें, वेपर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। व्हेन यू स्प्रेड परफ्यूम ऑन योर बॉडी, जब आप अपने शरीर पर क्या करते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, योर बॉडी फील्स स्लाइटली कूलर, आपका शरीर थोड़ा सा वहां पर ठंडक महसूस करता है। द सेम गोज ऑन एसीटोन एंड वाटर, एकदम एसीटोन और वाटर के साथ भी एक कहानी होती है। दिस इज एन इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन और द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है, जैसे एसीटोन हुआ, इसको जैसे हम लोग अपने शरीर पे रखते हैं, या फिर पेट्रोल भी रखिए अपने शरीर पर, तो क्या होगा, वो क्या होता है, बहुत जल्दी इवोपरेट कर जाता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ एनर्जी भी हमारे हाथ से वो लेता है, जिसके फलस्वरूप वहां पर हमको ठंडक महसूस होता है। ठीक है, अब फैक्टर दैट अफेक्ट द इवोपरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवोपरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, उसको उसमें इफेक्ट कर डालता है। पहला क्या है, टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ इवोपरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, सरफेस एरिया। डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। अगर छोटा सरफेस एरिया होगा तो इवोपरेशन कम होगा, और अगर सरफेस एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, तो इवोपरेशन अधिक होगा। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, the rate of evaporation increases. The surface area and the rate of evaporation are proportional to each other. Okay, again next third, humidity. अब देखेंगे कि ह्यूमिडिटी कि एयर में अगर नमी रहेगा तो क्या होगा, इवोपरेशन इफेक्ट होगा। तो द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। और ह्यूमिडिटी एंड द रेट ऑफ इवोपरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। ओके, अगेन विंड स्पीड। अब डिपेंड करता है इवोपरेशन किस पर, विंड के स्पीड पर भी। अगर विंड अधिक तेजी से ब्लो हो रहा है तो क्या होगा, फास्टर हो जाएगा इवोपरेशन। और अगर विंड स्पीड लो रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन कम हो जाएगा। नहीं, इंक्रीज इन विंड स्पीड रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड इवोपरेशन। Wind speed and the rate evaporation are proportional to each other. चलिए अब हम लोग देखते हैं इवोपरेशन causes cooling. इवोपरेशन से क्या होता है, ठंडक हमें महसूस होता है। कैसे, देखिए यहां पर, इवोपरेशन causes cooling in the general process. The principle involved here in the matter must either gain or lose energy to change its state. Here molecules move from liquid to gaseous state, and so it needs potential energy and kinetic energy. Due to this, energy transfer occurs in the surroundings as well as this is transferred from substance to surroundings और vice versa. नहीं, तो डिपेंड करता है क्या कि हम लोग जानते हैं कि इवोपरेशन जैसे ही कुछ लिक्विड रहता है तो इवोपरेट करता है। तो इवोपरेटर के बाद क्या होता है कि वो जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल जो है एयर में, वो क्या करता है कि उसमें जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो एरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कूल, ठंडा हो जाता है। और द चेंज इन टेम्परेचर अंटिल द इवोपरेशन प्रोसेस विल लीड टू कूलिंग। हेंस इवोपरेशन काउज ए कूलिंग इफेक्ट। व्हेन ए लिक्विड इवोपरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो भी आपको हम बताए,
नहीं, when a liquid evaporates, the particle of liquid absorb energy from the surroundings to compensate for the loss of energy during evaporation. Since evaporation causes cooling, this makes the surrounding cool. अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका है कि why should we wear cotton clothes in summer? समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? We sweat more in the summer season. गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है. कॉटन इज ए स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर. और कॉटन क्या है? वाटर, बहुत ही वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है. हेल्प टू एब्जॉर्ब द स्वेट एंड इंट्रोड्यूस टू द इन्वायरमेंट ऑफ इवोपरेशन. तो कहता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस पसीने को क्या करता है? इवोपरेट भी कर देता है. आवर बॉडी टेक्स आउट हीट एज द स्वेट इवोपरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी. देयरफॉर आवर बॉडी लॉसेस हीट एंड इज कूल. तो ये प्रोसेस चलते रहता है, हमें कूलनेस महसूस होते रहता है. अब व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर आइस कोल्ड वाटर? तो हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी कंटेनर है, कोई भी बर्तन है, तो ग्लास है, तो उसमें अगर हम लोग आइस पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है, तो बाहर में हम लोग देखते हैं क्या होता है? ड्रॉपलेट जमा होता है. ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि व्हेन वार्म एयर हिट्स द कोल्ड सरफेस. जब वार्म एयर क्या करता है? जब कोल्ड सरफेस को हिट करता है, इट रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट एंड कंडेंस. वो ठंडा हो जाता है और वहां पर कंडेंस्ड हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है ड्रॉपलेट के रूप में. दिस लीव्स ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन द ग्लास. इसीलिए हम लोग देखते हैं ग्लास के बाहर जो देखते हैं वो क्या होता है? ड्रॉपलेट जमा हो जाता है. तो यही है इसमें आपका पूरा लेसन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर में. ठीक है, तो इस प्रकार इसमें एक बार देखिएगा कि इसको आप स्टडी कीजिए. इसका हम क्वेश्चन आंसर फिर आप लोग को देंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देंगे. ओके, थैंक यू.